Hello students, welcome to e-classes of Learners Academy English School. In the previous video, we discussed about map and few places and a question, why do people travel nowadays? And today we will continue this question. Names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चीज़ मैप में भी बताई थी. सिंधु मीन्स इंडस, इंडस मीन्स इंडिया. जो इंडिया नाम है वो इंडस मीन्स सिंधु रिवर से मिला है. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एट लास्ट. जो आपको मैंने मैप भेजा है उसमें हमको ईरान और ग्रीस देखना है. The Iranians and the Greeks who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos of or the Indos, and the land to the east of the rivers was called India. The name Bharata was used for the group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Vedas. The West and the who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in the Sanskrit. ब्रैकेट में लिखा है dates to about 3500 years ago. Later it was used for the country. Before 2500 years ago, the Iranians and the Greeks who come through the northwest in India and familiar with Indus, and they called Hindos or Indos. जो इरानियंस और ग्रीक्स इंडिया में आए थे 2500 ईयर्स पहले, वो इंडिया में फैमिली के जैसे ही अच्छे से रहने लगे और वो हिंडोस और इंडोस इस नाम से जानने लगे. एंड नेम भारता was used for group of people who lived in the northwest. जो नॉर्थ वेस्ट साइड में ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे उनको कहते हैं भारता. ये मेंशन है ऋग्वेदास में. ठीक है, ऋग्वेदास संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज हुई है अप्रोक्स 3500 ईयर्स अगो. लेटर धीरे धीरे हमारी इस कंट्री का नाम इंडिया और भारत हो गया. These books were written on palm leaf or specially prepared leaf. ठीक है, and this leaf grown in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed. उसमें से कुछ स्क्रिप्ट ऐसी थी जिसको इंसेक्ट ने खा लिया या तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. पास्ट के बारे में कुछ फाइंड आउट करेंगे. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो. See students, here several ways to find out the past, and the one way is to read books and that were written long ago. These are called manuscripts. जो लॉन्ग अगो बुक्स लिखी गई हैं, बहुत साल पहले जो बुक्स लिखी हैं उसको हम कहेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड. दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू मीनिंग हैंड्स. जो लैटिन वर्ड है मैनू, वहाँ से हमने लिया है मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड. मैनू मीन्स हैंड, हैंड रिटन मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grow in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed. इतने सालों के बीच में many manuscripts were eaten by insects and some were destroyed. कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट इंसेक्ट्स ने खा के ख़त्म कर दी, बीच बीच में से होल वगैरह हो गए, एंड सम वर डिस्ट्रॉयड.
बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो ख़त्म नहीं हुई थी, कुछ सर्वाइव थी। ऑफन preserved in template and monasteries. These books dealt with all kind of subjects. All kind of subject, कौन कौन से subjects थे उसमें? Religious belief and practices, the lives of kings, medicines and science, ये सारे subjects उसमें cover किए गए थे. Besides, there were epics, और उसमें epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit. Prakrit means language used by ordinary people, and Tamil. तीन लैंग्वेज में ये बुक्स लिखी गई थी, संस्कृत, प्रकृत एंड तमिल. प्रकृत मीन्स ऑर्डिनरी लैंग्वेज है ये, ठीक है, यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था. These are writing on relatively hard surfaces such as stone or metal. Stone और metal के ऊपर जो लिखा होता है वो inscription. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscription as well, where men and women, including king and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. Students, उसमें है ना जो inscription, उसमें किंग, क्वीन कोई भी लिखवा सकता है. कहाँ पे लिखवाता है? मेटल और स्टोन पे, मीन्स हार्ड सरफेसिस पे लिखते हैं. समटाइम जो किंग्स थे वो उनकी जो विक्ट्री है बैटल में, वो कहाँ कहाँ जीते, वो सब भी इस पे लिखते थे. क्यों? रिकॉर्ड के लिए. ओके, सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, एंड दिस पिक्चर इज एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन. This inscription dated to about 2250 years ago and was found in the Kandahar, present day अफगानिस्तान. ठीक है, ये अफगानिस्तान में मिली थी और 2250 years पहले मिली थी. ओके, then there were many other things that were made and used in the past. और भी बहुत सारी चीज़ें पास्ट में हुई थी. Those who study these objects are called archaeologists. और जो लोग इस के लिए स्टडी करते हैं, मीन्स पास्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाए, पास्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं, उनको हम कहेंगे आर्कियोलॉजिस्ट्स. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स. स्टोन और ब्रिक्स की बनी हुई जितनी भी बिल्डिंग्स अभी भी हैं उसके ऊपर वो स्टडी करते हैं. पेंटिंग एंड स्कल्पचर. They also explore and excavated. Excavated means dig under the surface of the earth. क्यों करते हैं ये सब? क्यों अर्थ के सरफेस के अंदर डिग करते हैं वो? To find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. ये सारी चीज़ें वो ढूंढने के लिए. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay और metal. ये सारी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें स्टोन से बनी हुई है, कुछ चीज़ें बॉन से, जो मेटल और क्ले है उसको बैक करके भी बनाया है. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम के लिए हमें सर्च कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम कोई भी चीज़ तभी ही सर्वाइव कर सकती है जब वो सब्सटेंस हार्ड हो. हार्ड सब्सटेंस पे बनी हुई चीज़ को हम इजीली लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे वेपन्स, पोट्स, पैन, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्ड सब्सटेंस से बनी हुई होंगी, मीन्स मेटल या फिर बैक्ड क्ले यूज़ किया हुआ होगा उस पर. अभी आज हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, एक्सकावेटेड और एक्सप्लोरर, मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सब अभी तक हमने देखा. See students, left side a pot from an old city. Pots like this were used about 4700 years ago. इस तरह के पोट पहले यूज होते थे. And right hand side an old silver coin.
Coins such as this one were in use from about 2500 years ago. ठीक है स्टूडेंट्स, आर्कोलॉजिस्ट also looked for bones. बॉन्स को क्यों लोग देखते थे वो? कौन से बॉन्स? सबसे पहले बॉन्स किसके? बॉन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश. अभी क्यों उनके बॉन्स को क्यों वो सर्च करते थे? टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट. पास्ट में वो लोग क्या खाते थे वो जानने के लिए. प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली. If sheet of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in the charred form. सिर्फ वो बॉन्स को ही नहीं बट रिमेन जो अभी भी कुछ बहुत ही पुराने प्लांट हैं उनके ऊपर भी स्टडी करते हैं और उनके जो शीड है ग्रेन का वो भी देखते हैं कि किस तरह का पहले प्लांटेशन होता था एंड पीसीस ऑफ वुड मतलब लकड़ी के टुकड़े से भी इनको पता चलता था कि वो किस तरह के प्लांट को वो ग्रो करते थे. One past or many. Did you notice that the title of this book are pasts? पीछे s लगा है means plural. We have used the word past in the plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. मतलब people to people और group of people to people यहाँ पे ये past है different है. For example, the life of herders or farmers were different from those who kings and queens के कंपेयर में जो फार्मर और हर्डर्स है उनकी लाइफ डिफरेंट है. The lives of merchant were different from those of craft persons and so on. Also, it true even today. People follow different practices and custom in different part of the country. Students, पूरी कंट्री में डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट कस्टम्स एंड डिफरेंट कस्टम्स की प्रैक्टिसेस होती थी. फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट. 3 तरीके से फूड खाते हैं, या तो फिशिंग से, हंटिंग या तो कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट. बाय कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाइंग ऑफ फूड. स्टूडेंट्स, सिटीज में जो पीपल है वो अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं. डिफरेंट सच इज देयर एग्जिस्टेंस इन द पास्ट एज वेल. बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. चलो भी दूसरी तरह के डिफरेंट में जाते हैं तो वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट. जो किंग्स थे वो ऑलवेज बैटल मतलब क्यों फॉट करते थे वो, क्यों हर वक्त वॉर लगी रहती थी किंग्स के बीच में? बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज. वो अपनी जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज ए हंटर्स, फिशिंग फॉक, गेदर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ वॉट दे डिड. तो वैसे ही फार्मर ने, फिशिंग मैन ने, हंटर्स ने, उन्होंने क्या किया वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे और उनका रिकॉर्ड अभी है भी नहीं. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remain unknown. बस आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके लाइफ के बारे में हमको जितना बताया हमें सिर्फ उतना ही उनके बारे में पता है. उन्होंने अपना कहीं रिकॉर्ड रखा ही नहीं. जो आर्कियोलॉजिस्ट को भी वो चीज़ हेल्पफुल रहे वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो. Then archaeologists used pieces of wood, sheet to find out about the hunters and farmers. What do dates mean? If someone asks you to the date, you will probably mention the date, month and year. आपसे कोई आज की डेट पूछ रहा है या आपकी बर्थ डेट, मंथ या ईयर पूछ रहा है तो आप प्रोबेबली एकदम सही बताएंगे. This year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जो क्रिश्चियनिटी का फाउंडर है जीसस क्राइस्ट, उसकी बर्थ डेट से ये डेट चल रही है. जो 2000 हम लगाते हैं ना, 2000 ईयर्स ये सब, ठीक. तो जो सारी डेटें हैं वो बिफोर द क्राइस्ट और आफ्टर द क्राइस्ट ऐसे है. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है.